انہوں نے 1970 کی دہائی میں جدید غزل پر مقالہ لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس پہ اس قدر ریجھے یہ کہ اس کے داس بن گئے. اور جب سے انہوں نے غزل کو نئی لفظیات، نئے موضوعات اور نئی تشبیہات سے اتنا سجایا کہ یہ غزل ان پہ خود ریچھ گئی. اب دونوں ایک دوسرے کی پہچان بن گئے ہیں اور اسی پہچان کے عوض میں ہندوستان کی ساہتیہ اکیڈمی نے ان کو ایوارڈ دیا اور 2 برس پہلے ہندوستان کے صدر کی طرف سے انہیں پدم شری ملا. تو آئیے استقبال کریں پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر. دوستو تھوڑا سا میں اس وقت سب چونکہ علی گڑھ پورا علی گڑھ ہے، وہ علی گڑھ جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو میں شعر سنانے سے پہلے کچھ کشمکش میں ہوں. اور وہ کشمکش یہ ہے کہ جب ابھی ہمارے ہاں مشرف صاحب تشریف لائے تھے تو ایک عجیب بات ہوئی تھی کہ ایک مشاعرہ ترتیب دیا تھا. اٹل بہاری صاحب جو خود شاعر ہیں انہوں نے نہیں، اس سے پہلے جو وزیر اعظم ہمارے سنگھ صاحب انہوں نے ترتیب دیا تھا. اور اس کی غرض یہ تھی کہ پہلے انہیں مشرف صاحب کو ان کی حویلی میں لے جایا جائے گا. پاکستان کے احمد فراز کو بھی بلایا گیا تھا، میرے دوست ہیں وہ. محمود شام جنگ کے ایڈیٹر تھے اور کئی لوگ تھے. لیکن اچانک شام کو انہوں نے مجھ سے آگے کہا پرانے والے وزیر اعظم نے کہ بشیر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ تم لوگ وہاں نہیں جاؤ گے اور وہاں مشاعرہ نہیں ہوگا، اب پاکستانی مہمان آ گئے ہیں تو یہاں. تو ویسے رو دھو کے وہ مشاعرہ وہاں ہو گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں کے ٹی وی نے یہ دکھایا، عجیب سا منظر تھا. میں آپ کو وہ میرے شعر کے استعمال کا اور بڑی بے سر و سامانی میں وہاں وہ تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر یہاں اس طرح پڑھا جائے کہ وہ منظر جو لوگ خواب دیکھتے تھے اس سے چھو جائے. دکھایا گیا کہ مشرف صاحب تاج محل کے سائے میں اس طرح کھڑے ہیں کہ بخدا وہ فوجی نہیں عاشق لگ رہے ہیں. اور وہ جو ہمارے والے ہیں جن کے اللہ نے گھٹنے میں اتنا درد دیا ہے کہ مجنوں کے دل میں اتنا درد نہیں ہوگا، وہ بھی اسی طرح سے لہراتے ہوئے گئے اور دونوں بغل گیر ہوئے. جیسے بغل گیر ہوئے تو ٹی وی نے یہ کمال کیا کہ جو دلی میں نے شعر پڑھا تھا وہ آگرے میں فٹ کر دیا. اب سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاج محل ہے شاہجہاں کی محبتوں میں ڈوبا ہوا، ممتاز محل کے پاکیزہ تصور سے جگمگاتا ہوا. مشرف صاحب عاشق، وہاں عاشق دونوں گلے مل رہے ہیں اور مجھ جیسا بیوقوف آدمی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوچ لو. بات کیا ہے مجھے شعر سنانے کی کہ میرا شعر وہاں ضائع ہوا تھا. یہاں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اتنی زور سے ذرا تالی والی بجا دیجیے کہ خدا کرے کوئی ان دونوں کو سمجھا دے کہ جو تم شعر خراب کر کے آئے تھے اسے ٹھیک کر لیا. سچویشن ہے کہ دونوں گلے مل رہے ہیں اور شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت تاج محل. یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت، اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا. یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت، اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا. اور پھر دکھایا کہ میں اپنا ایک شعر ایسے ڈال کے جا رہا ہوں اور یہ شعر تھا کہ محبتوں میں، سنیے گا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. میں اس لیے بھی میں نے یہ دونوں شعر سنا دیے کہ پچھلی بار دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. تو اب میں سیدھے غزل تک آنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت نوازا. دیکھیے بالکل بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے، میں خود ان دونوں کو بھولنا چاہتا ہوں. ویسے اگر آپ برا نام نہ پوچھیں تو میں ایک تیسرے اور ہیں ان کو بھی بھولنا چاہتا ہوں. میں غزل سنانا چاہتا ہوں آپ کو. غزل ہے کہ خوبصورت ہیں بہت راستے کھو جاؤں گا،
खूबसूरत है बहुत रास्ते खूबसूरत हैं बहुत रास्ते खो जाऊंगा, अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा, अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूं, एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूं, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊंगा। एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूं, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊंगा। जब बरसना है तो सूरज की तरफ क्यों जाऊं? सुनिएगा शेर, जब बरसना है तो सूरज की तरफ क्यों जाऊं, इन मोहब्बत के पहाड़ों को भिगो जाऊंगा। वाह वाह। और शेर पढ़ता हूं कि दिल से, अब सुनिएगा शेर, कि दिल से निकला हुआ आंसू हूं छुपा ले मुझको, दिल से निकला हुआ आंसू हूं छुपा ले मुझको, आसमानों में जहां दाग हैं धो जाऊंगा। वाह वाह। आसमानों में जहां दाग है धो जाऊंगा, धूप तलवों को मेरे चूमेगी जाते जाते, बदलियां भेज दे मैं ओढ़ के सो जाऊंगा। वाह वाह। बदलियां भेज दे मैं ओढ़ के सो जाऊंगा। गजल पढ़ता हूं कि आग लहरा के चली है इसे आंचल कर दो, आग लहरा के चली है इसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। मैं जानता हूं कि किस शेर पर आप चुप हो जाते हैं तो मैं जाग जाता हूं, और किस शेर पर अब आप जागेंगे तो जरा थोड़ी देर मैं आराम करूंगा। जब मुझे शेर पढ़ता हूं कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरे शेर मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब उसे धूप बना दो मुझे बादल कर दो। अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो, और तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, फिर से वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। मेरे एक दोस्त बैठे हैं सतपाल, इन्होंने बहुत अच्छी, इनके मजमून की लोगों ने बहुत बुराई की होगी, मैंने बहुत तारीफ की है। मेरा भी यही ख्याल है कि जो गजल के बहुत पुराने लफ्ज हैं कब्र में हैं उन्हें नहीं निकालना चाहिए। मैं जमीन से लफ्ज आपके कहने से निकाल रहा हूं, देखें आप पे क्या असर होता है। शेर पढ़ता हूं कि वो शाख है न फूल, दोस्तों अगर शेर नए हो तो मुझे कम और सतपाल को जरा ज्यादा दाद दीजिएगा। वो शाख है न फूल अगर तितलियां न हो, क्या शर्त रखी है शाख, वो शाख है न फूल अगर तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो, पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए, खाली है आसमान अगर बदलियां ना हो। पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए, खाली है आसमान अगर बदलियां ना हो, और दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मकान न दे ताजा हवा की जिसमें कहीं खिड़कियां न। वाह वाह वाह, फिर से भाई बहुत। दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा, ये शेर वाकई अच्छा था, मगर आप इनके कहने से अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि ये मेरी कोई वकालत कर रहे हैं।
मैं फिर पढ़ता हूँ, जरा इन्हें आप दाद वाद दे के बता दीजिए कि आप बड़ा राह समझ लेते हैं। दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मकान न दे ताजा हवा की जिसमें कहीं खिड़कियां ना हो, और मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों, जिस डाकिए के पास तेरी चिट्ठियां ना हो। मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों, मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों, जिस डाकिए के पास तेरी चिट्ठियां ना हो। एक गजल आप इसलिए सुने, इसमें एक कोई शेर जी पुराना है, मगर गजल मांगती है वक्त, मेहनत चाहती है। तरन्नुम से तो मैं जब पढ़ता हूँ, जब सुनने वाले नहीं सी गजल पर समझ पाते तो फिर मैं तरन्नुम से तो मैं पढ़ूंगा कुछ है नहीं घर। आपको तैसे सुना दूं, तरन्नुम से सुना दूंगा। शेर सुनिए, बहुत अच्छा लग रहा। दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मौका न दे। गजल इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा कि रात के पार मैं शेर पढ़ूंगा, मेरा इम्तहान लीजिएगा। बुरा शेर हो, मतलब तो है ही आप कमजोर, सुन लीजिएगा, उसके बाद हर लफ्ज़ से परखिएगा। बखुदा मैं खुदा की आपको कसम देता हूं कि अगर बहुत अच्छा शेर ना हो तो बिल्कुल चुप हो जाइएगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा शेर हो तो इतनी दाद दीजिएगा कि अब्दुल्ला साहब को भी याद हो जाए कि अच्छे शेर पर लोग दाद दे सकते हैं। मतलब सुन लीजिए, मामूली है। धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। अब शेर सुनिए, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है। सुनिएगा, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं, पढ़ते हुए डर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं, पढ़ते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। ये जो बड़े बड़े नक्काद हैं वो कहते हैं जमाना इतना बुरा हो गया है, कहीं कहीं फूल से और पत्ती से आज की बदमाश जिंदगी को तुम पेंट कर सकते तो कर सकता हूँ, सलीका होना चाहिए। कि शेर कहता हूँ कि ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, फूल से हाथ मिलाते हुए डर लगता है। ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, फूल से हाथ मिलाते हुए डर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, फूल से हाथ मिलाते हुए डर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। खुदा की कसम, मैं कभी अपने को कामयाब नहीं मानता जहां अपने छोटे छोटे दुख सुख में आपको शरीक करके ये ना समझ लूं कि जिंदगी बहरहाल इंसाफ करती है। छोटा सी जगह रहता हूँ भोपाल, 10 आदमी टीवी पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरी बीवी भी बैठी थी, तो डायरेक्टर ने कहा कि आपको उनसे कोई सवाल पूछे। 2 शेर में पढ़ चुका था। मेरी बीवी भी MA PhD हैं, जानते हैं आप आजकल उर्दू के भी MA PhD कैसे होते हैं। तो वो आकर के कहने लगे कि बशीर साहब मशहूर तो बहुत हो गए हो,
शेर कब कहोगे? परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। उनसे वहां ये जुमला जो आपके सामने कह रहा हूं नहीं कहा था, सिर्फ शेर पढ़ दिया था, लेकिन मेरे जहन में ये था कि वो चूंकि माँ हैं तो क्रिएशन का दुख जानती होंगी। शेर पढ़ा था मैंने कि हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है। हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। आखिर में 2-3-4 शेर पढ़ के जाना चाहूंगा। अर्ज किया है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। आप जानते हैं तो भाई बैठे हैं अफी साहब, ये जब पढ़ेंगे और एक और उर्दू शायरी की नहीं दुनिया की शायरी की एक आवाज और आबरू यहाँ तशरीफ रखती हैं, आप सब जान गए। और मैं इन बच्चों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी जितनी लोगों ने दाद हासिल की उससे ज्यादा मैं भी करके दिखा दूंगा उसको। उसके बावजूद जब आप पढ़ेंगी तो हम लोग ये बताएंगे कि असली और सच्ची शायरी की किस तरह से इज्जत की जाती है और उसके सामने कैसे सर झुकाया जाता है। मैं आपको पहले इसलिए आज मुझे मौका मिला, तमाम एक ऐसी गजल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप कुछ नहीं बोलूँगा, आप तो खुद बताएगी मगर घबराइएगा नहीं, जरा शुरू में अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है कि 35 थी बहुत भरपूर और 80 लगी। 35 थी बहुत मैं ऐसे ही शुरू करूंगा और लेकिन इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा मैं गजल पढ़ गया। 35 थी बहुत भरपूर औरत सी लगी, उससे मिलकर जिंदगी कुछ खूबसूरत सी लगी। अब देखिए मेरा शेर शुरू होता है, नया भी शेर हो, हमारी बड़ी बहन बैठी है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं और शेर भी हो और मुशायरा भी उसको एक्सेप्ट करे। फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी औरत सी लगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी औरत सी लगी। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इंसाफ करें, कभी झूठे शेर पे मेरे दान न दें कि आखिरी बेटी की बदल रहा हूं मौजू, आखिरी आपकी नजर आपा, आखिरी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अपनी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। हिंदुस्तान का पद्मश्री शेर पढ़ा है कि रोटियां कच्ची पकी, कपड़े बहुत गंदे धुले, रोटियां कच्ची पकी, कपड़े बहुत गंदे धुले, मुझको पाकिस्तान की इसमें शरारत सी लगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
रोटियां कच्ची पकी, कपड़े बहुत गंदे धुले, मुझको पाकिस्तान की इसमें शरारत सी लगी। अब मैं गजल की तरफ आता हूँ, पुरानी गजल जो हमेशा जवान रहेगी। उदासी आसमां है खफा, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पर बहुत खामोश बैठा है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। उदासी आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पर बहुत खामोश बैठा है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। एक शेर और गजल का सुने, मैं तरन्नुम सुनाऊंगा कि मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने। दोस्तों सुने जी, आप बुरे शेर पर भी तो आप इतना अच्छे दाद देते हैं, मैं एक अच्छा शेर पढ़ लूं अपना। मेरे बुरे शेर पे दाद देते। मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मेरा दिमाग धड़कता है मेरे दिल की तरह। मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मेरा दिमाग धड़कता है मेरे दिल की तरह। और गजल सुनिए कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। 4 शेर पढ़ूंगा, 5 फिर 2-3 शेर तहत में तरन्नुम में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर, शेर सुनिएगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह अच्छा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मैं तो हर चीज बताता चलता हूँ, कोई खुश हो या ना खुश हो। जब थोड़े से इजाज़ दिए गए तो हमारे यहाँ भी इतने पढ़े लिखे लीडर होते हैं जितने आप क्या होते हैं। एक लीडर साहब आए, उन्होंने हार बार पहनाया, कहने लगे ये बशीर होता है, ये इन्हें कोई जानता मानता थोड़ी था। अरे मर जाते भूखो, हमने इनको मतलब इज्जत दी, हुकूमत से इनाम दिलवाया। मैंने कहा जी हुजूर ठीक है। शेर सुनिए। प्राइम मिनिस्टर का लड़का प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, शायर का लड़का शायर नहीं होता। शेर सुनो। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर। वो महकती पलकों की होठ से कोई तारा चमका था रात में। वो महकती पलकों की होठ से कोई तारा चमका था रात में, मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए वही कोहिनूर है हाथ में। वो महकती पलकों की ओट से कोई तारा चमका था रात में,
میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. ملاحظہ فرمائیے شاعر کا حوصلہ دیکھیے. آپ کو پسند آئے تو ضرور مجھے پتہ چلے. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. میں تمام مثال لگ جائے تو آپ کی آواز مجھے ملنی چاہیے کہ میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. واہ کیا حوصلہ بھائی شاعر. واہ واہ بہت اچھے. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. ملاحظہ کیجیے. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. مجھے خوشبوؤں میں بسا گیا تیرا پیار ایک ہی رات میں. ایک میں ذرا سا آپائیے ایک مضمون میں نے باندھا کہ یہ مجھے مجنوں صاحب پسند نہیں آئے. لیلا لیلا کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. مجھ سے کچھ سیکھتے ویکھتے تو میں بتاتا ہوں. میں جب یہ کرتا ہوں تو بال بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. یہ فرق ہے تھوڑا سا. یہ سبجیکٹ یہ ہے جی. میں عرض کرتا ہوں ان سے مخاطب ہو کے کہ کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا. کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا. کبھی بال بچوں کے ساتھ آ یہ پڑاؤ لگتا ہے رات میں میری بند مٹھی نہ. آخری شعر. کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں میری بند مٹھی نہ کھو.